All right. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. Today we need to discuss a very important, one of the most, a question which is extensive question, almost 14-15 marks ka question hoga ye. Question 2 of alternative to practical, both for IGCSE and for O levels people. Right? And you know that O levels में ज़्यादातर since इस क्लास में ज़्यादा बच्चे भी O levels के ही हैं. So O levels में most of the time आपको moles का question आता है, titration related आ सकता है, enthalpy related हो सकता है, or it could be electrolysis or rate of reaction. 4 possible questions होते हैं question 2s normally, but most of the time it is related to titration, or it could be enthalpy. लेकिन जो IGCSE के लोग हैं उनका ज्यादा एंथैल्पी होता है या रेट ऑफ रिएक्शन. टाइट्रेशन कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी, बट फ्रॉम द पास्ट जो हो जिस तरह मतलब पास्ट पेपर्स आते रहे उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं. So in this very worksheet we have 5 extensive questions of 5 extensive question 2s. We will start with question 1. Try to solve as many questions as we can in this online session. I'm sure आप सबने print किया हुआ, you all have this worksheets with you. So let's get started. क्वेश्चन 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्टेमिना टू रीड, टू अंडरलाइन एंड टू नोट द इंपॉर्टेंट गिवन इंफॉर्मेशन. Because look at this amount of English in the statement of the question. So let's read the English, the statement of question 1, which is actually question 2 of your ATP. ये सारी worksheet question 2s की ही है. So in this very question, aqueous ammonia is a solution of ammonia gas. Normally ammonia gas hoti hai, but we dissolve ammonia in water, so it becomes a solution. A student titrates. Now titration is a reaction between an acid and an alkali. And what type of reaction is this titration reaction? It's a neutralization reaction, and in this reaction you always get salt and water. So it's a neutralization reaction. Examiner could ask to write the ionic equation of the reaction. So we all know, no matter what acid do you use, no matter what alkali do you use, they always produce hydrogen ion and hydroxide ion respectively and produce 1 mole of water molecule, right? This reaction is neutralization. And you can see that in the ionic equation above, only bond forming is happening. कोई bond break नहीं कर रहे हम यहाँ पे. So मुझे बताएं, if you know, bond forming is an exothermic or endothermic process? Bond forming is what? Exothermic. Excellent. That's why neutralization reaction are exothermic reaction, right? Neutralization reaction की एक observation भी है कि heat जो beaker होता है उसका temperature बढ़ जाता है, तो it is an exothermic reaction with an enthalpy of delta H negative. Depends कितनी negative होती है, वो हर reaction to reaction vary करता है, but it is an exothermic reaction. Okay, a student titrates 2 samples of aqueous ammonia. So we have 2 different samples of ammonia, sample A and sample B, and we are reacting. Ammonia is an alkali. ये हमें पता होना चाहिए, ऊपर उसने ammonia is alkali. तो यहाँ पे the alkali that we have ammonia, and we have 2 different samples of ammonia, A and B, right? And we are titrating both samples with this much concentration of hydrochloric acid. So हम दोनों का अलग अलग HCl से रिएक्शन कर रहे हैं. A का भी रिएक्शन कर रहे हैं अलग से HCl के साथ, और B का भी अलग से HCl से रिएक्शन कर रहे हैं. Now HCl की concentration is already given. It's 0.5 mole per decimeter cube. और since we are given with 2 different samples of ammonia, तो हम देखते हैं कि ammonia कितनी strong है, कितनी concentrated. Let's read the whole procedure. In step 1, rinse and fill the burette with 0.5 mole per decimeter cube of HCl. So we need to rinse. Normally हम उसको rinse करते हैं with distilled water to remove any chemicals, any impurities present. मैं burette की बात कर रहा हूँ. And then we rinse the burette with the same substance जिसको उसमें बाद में fill करना होता है. For example, अगर हम इसको water से fill कर लिया, water से इसको हमने wash किया, और even after adding distilled water आपने उसको remove भी कर दिया, तो still there are some tiny droplets of water which will stuck to the walls of the burette, which will dilute the HCl. जो बाद में HCl add करेंगे इसमें,
उसको तो ये डाइल्यूट कर देगा। तो फिर हमने डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद इसको किससे वॉश करना है, एक्चुअल में उसी चीज से वॉश करना है जो इसमें ऐड करनी। तो हम इसको किससे वॉश करेंगे, हम इसको HCl से ही रिंस करेंगे। तो आप पूछ सकता है कि आपने किससे रिंस किया उसको। फिर हमने उसको इसमें ऐड कर लिया HCl। स्टेप 2, यूज द पाइपेट, वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट टू ऐड 25.0 centimeter cube of A in the flask. So imagine you have a conical flask there, and in this flask you pour 25.0, since जो आपका पाइपेट होता है it is ये एग्जैक्ट मेजर कर सकता है आपको 20 या 25 एग्जैक्ट मेजर करता है। एंड देन वी हैव ब्यूरेट ऑन द टॉप। ब्यूरेट को हमने रिंस किया, किसके साथ रिंस किया, जो चीज इसके अंदर ऐड करनी है, और रिंस हमने किया इसको HCl से, ठीक है। ओके, ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। किसमें ऐड करते हैं, हमेशा हम इंडिकेटर किसमें ऐड करते हैं, यू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर in the conical flask. Why do we add indicator? Why there is a reason to add indicator? Yes. To see where the end point of the reaction is? Yeah, so to see the end point of the titration. Because methyl orange indicator always change the color when a small drop of excess acid or alkali is added. अब imagine आपके पास नीचे alkali, alkali का मतलब you have lot of hydroxide ion, अगर बहुत सारे hydroxide ion, right? अच्छा, आप ऊपर से ऐड कर रहे हो एसिड, तो एसिड क्या करेगा, एसिड विल प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। एक हाइड्रोजन आयन आएगा वो इसको न्यूट्रल कर देगा, यू ऐड मोर हाइड्रोजन आयन, वो इसको न्यूट्रल कर देगा, मोर हाइड्रोजन आयन, यू कीप ऑन एडिंग द हाइड्रोजन आयन until all of the alkali is neutralized. The moment you will add excess hydrogen ion, अब no hydroxide ion is there to react with this hydrogen ion. तो जैसे एक H प्लस ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि नीचे वाली एल्कली का ओवरऑल pH लेस देन 7 हो जाएगा, बिकॉज वो H प्लस इज एन एक्सेस, तो मिथाइल ऑरेंज विल चेंज द कलर. So this is how we use the indicator to observe the sharp color change. हम इसको ऊपर white tile भी रखेंगे by the way, क्योंकि sometime जो color change होता है वो हम बहुत ज्यादा HCl ऐड करेंगे, then अगर आपका जहाँ पे आपने फ्लास्क रखी हुई है, फ्लास्क का कोई जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, तो हमें कलर चेंज नजर ही नहीं आएगा, बिकॉज बोथ एसिड एंड एल्कली दे आर कलरलेस सब्सटेंसेस, राइट. अब उसने स्टेप 3 में कहा, 4 में, कि आप place the flask on the white tile. वो पूछ सकता है why white tile is placed under the flask. So white tile will give a very clear view to observe the sharp color change, to observe the actual color. जैसे ही color change हुआ, आपने यहाँ से इसको acid add करना बंद कर दिया, right? Now step 5. Add 0.5 moles of HCl from the burette while swirling. तो वो आपसे पूछेगा why there is a need to swirl. अब आप ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग एसिड फ्रॉम द टॉप. जैसे मैंने कहा कि आप एसिड का मतलब आप H प्लस आयन ऐड कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट स्विलिंग द फ्लास्क. स्विलिंग का मतलब होता है जस्ट टू मिक्स द सॉल्यूशन सो दैट इट गेट न्यूट्रलाइज. आपने ऊपर से H प्लस ऐड किए, स्विल, यू नीड टू कीप, एक राइट हैंड से आप उसको ऐड कर रहे हो और लेफ्ट से आप उसकी फ्लास्क को क्या कर रहे हो, स्विल कर रहे हो, सो दैट whatever you are adding from the top will mix the content of the flask, adding drop by drop near the end point until the solution just changes the color. And देखो आपने एसिड ऐड करना स्टार्ट किया, and don't forget to take the initial reading, and then आपने उसको ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हो, एसिड कम हो रहा है until के यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ को टच किया, नीचे कलर चेंज हो गया. तो आपको पता चल गया कि this much of the volume of acid was used to neutralize 25.0 aqueous ammonia, because नीचे हमने क्या लिया हुआ, aqueous ammonia. तो आपको एंड पॉइंट पता चल गया, बट यू हैव टू रिपीट द टाइट्रेशन एटलीस्ट 3 times. आपने 3 बार टाइट्रेशन रिपीट करनी है. आपसे पूछेगा व्हाई देयर इज अ नीड टू रिपीट द टाइट्रेशन, टू गेट मोर रिलायबल रिजल्ट. बिकॉज हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने सही से इनिशियल वॉल्यूम ना नोट किया हो, नीचे आपने 25 की बजाय 26 ले लिया हो, या कोई देयर मे बी एनी ह्यूमन एरर, कोई भी पॉसिबल है. सो आपने रिपीट करनी है टाइट्रेशन एटलीस्ट 3 times टू गेट मोर रिलायबल रिजल्ट. अगर रिजल्ट रिपीट हो रहे हैं, वो उसी के सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन ठीक है. तो फिर आप तीनों का एवरेज ले लोगे. ओके, स्टेप नंबर 6, एम्प्टीज द कॉनिकल फ्लास्क, रिंस इट विद डिस्टिल्ड वाटर. अच्छा, जो कॉनिकल फ्लास्क होती है ना, नीचे जो हमने फ्लास्क ली, इसको हमने डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करना है,
जो ब्यूरेट है, दिस इज ब्यूरेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हमने उसी केमिकल से रिंस करना है जो इसमें ऐड करना है, बिकॉज अगर इसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे तो इट कैन डाइल्यूट, राइट, आर एसिड। इसको बेटा अगर हम अमोनिया से रिंस करेंगे, इसको अगर हम अमोनिया से रिंस करेंगे तो अमोनिया इसके अंदर रह जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो जब अमोनिया इसके अंदर रह जाएगी, हमने तो 22 से 25 ऐड किया था, सो डिस्टिल वाटर से इसलिए वॉश करते हैं टू रिमूव एनी केमिकल्स विच आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमने ये रिपीट करना है। अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स रह भी जाते हैं तो इसको वो डाइल्यूट कर भी देते हैं, लेकिन इसके मोल्स का पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल्स इसके सेम रहेंगे। तो आपको पूछेगा व्हाई इट इज यूज्ड टू, यू नो, वाटर से क्यों वॉश करते हैं? टू रिमूव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू रिमूव द एनी केमिकल्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, टू रिमूव द कंटामिनेशंस, टू रिमूव केमिकल्स ऑफ द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। ये केमिकल रिमूव करेगा। आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें भी तो वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे ना? बिल्कुल रहेंगे, बट इट विल नॉट अफेक्ट द मोल्स। मोल्स नीचे जो है वो सेम रहेंगे। अगर नीचे सेम मोल्स हैं तो ऊपर से जो मोल्स आएंगे, यू नो, नीचे अगर मैं उसमें ऐड कर भी देता हूं तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डजंट चेंजेस टू रिमूव द केमिकल्स ऑफ द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। ओके, रिपीट द स्टेप 2 to 6। आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। रिपीट स्टेप 2 to 7 यूजिंग एक्वस अमोनिया बी। अब वो कह रहा है कि पहले ए यूज करे थे, बी यूज करे इंस्टेड ऑफ ए। नाउ लेट्स लुक एट द टाइट्रेशन रिजल्ट्स। This is a titration 1 everyone. This is initial reading you can see, और जो ब्यूरेट होता है it is sensitive up to 0.1, ठीक है। तो if you can see the reading here, what is the reading here by the way, anyone? What is the initial reading, Dr. Aksa? 0. It's not 0. Whenever you write the reading, I just mentioned that it is sensitive up to 0.1. You have to say 0.0. Because it is, can you see that it can measure up to 0.1 decimal places? Similarly, the final reading is 15 point, देखो ऊपर से ऐड कर रहे हैं, पहले 50 0 था, हमने ऐड करना स्टार्ट किया, यहाँ से ऐड होता गया until के कलर चेंज हुआ at exact 15.2. Can you see the 15.2 everyone? And it is in centimeter cube. नीचे बल्कि टेबल में गिवन होगा। So titration 2 में initial is 15.2. I can see 15.2. I'm sure आपको भी ये नजर आ रहा है। And final is 30.2. Make sense everyone? That's the value in centimeter cube. तो लिख लेते हैं जल्दी से। So अच्छा, यहाँ पे बच्चे एक प्रॉब्लम करते हैं, आपने जरा गौर से देखना भाई, ये फाइनल है। इतने हम एक्साइटेड होते हैं कि यहाँ पे इनिशियल लिख देते हैं और यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं। तो मेक श्योर आप इसको, मैंने कहा कि पूरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़नी है। सो इनिशियल यहाँ पे लिखनी है 0.0, और इसकी इनिशियल है 15.2, इसकी फाइनल है 15.2, और इसकी फाइनल है 30.2, ऊपर लिखी हुई मैंने आपके लिए। अब वॉल्यूम यूज कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट सब्ट्रैक्ट द इनिशियल फ्रॉम द फाइनल। सिंस आई एम गुड एट मैथ्स, बेटर देन यू, तो इसका तो मुझे पता है, ये कैलकुलेटर से कर लें आप। कितना आएगा? आई थिंक ये आएगा, कितना आएगा भाई? 30.2 माइनस 15.2 है एग्जैक्ट 15, लाइक 15 लिख लेते। If exact 15 नहीं लिखेंगे, exact 15.0 लिखेंगे, because like I said it is sensitive up to 0.1, so you got 3 marks. समझ आ रही है सबको? So अभी तक हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, we just try to make sense out of the whole experiment कि ये किया क्यों है, हर स्टेप की क्या रीजन है, why we rinse it with water, why sometimes with the chemical, why there is a need to swirl, why there is a need to put the white tile underneath, you know, and why there is a need to repeat the titration. These are the commonly asked questions, so I'm sure आप सुन रहे हैं और आपको समझ आ रही है ये बात। Let's move on to step 2, I mean part B. Figure 2.2 shows the burette reading for one of the titration with B. वो जो पीछे किए हुए थे वो देखो, एक्वस अमोनिया के 2 सैंपल्स थे। ये एक्वस अमोनिया A की हमने 2 बार टाइट्रेशन की, दिस वाज टाइट्रेशन विद A, राइट। सो टाइट्रेशन A के ये 2 रिजल्ट्स हैं, और इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं। पहली बार टाइट्रेशन किया तो A का कितना वॉल्यूम यूज हुआ? 15.2। सेकेंड टाइम यूज किया तो कितना वॉल्यूम यूज हुआ? 15। सो ऑलमोस्ट लाइक वेरी क्लोज। इसका मतलब हमारे रिजल्ट, हम इनका एवरेज ले लेंगे टू गेट यू नो फर्दर इसमें। अच्छा, टाइट्रेशन जो बी अमोनिया, बी भी अगेन एक्वस अमोनिया का दूसरा सैंपल है। दिस इज द सेम एक्वस अमोनिया बट डिफरेंट सैंपल। हो सकता है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट हो उससे, विच इज पॉसिबल। इसकी इनिशियल रीडिंग इज हाउ मच? आई कैन सी द इनिशियल रीडिंग इज नथिंग बट 0.6, ठीक है, ये 0.5 है,
और 0.6, तो आप लोअर मेनिस्कस देखते हो ब्यूरेट में, लोअर मेनिस्कस, ये बात याद रखना। अच्छा यहाँ पे क्या है, आई कैन सी द एग्जैक्ट रीडिंग इज 35.5, राइट, द फाइनल रीडिंग। अच्छा यहाँ पे भी उसने रिपीट किया, टाइट्रेशन 3 की रीडिंग उसने खुद से दे दी है, टाइट्रेशन 4 उसने कहा है कि 0.6 इज द इनिशियल रीडिंग एंड 35.5 शुड बी योर फाइनल रीडिंग, राइट। सो वॉल्यूम यूज कितना आएगा, वॉल्यूम यूज को हम टाइटर भी कहते हैं, बाय द वे इसको क्या कहते हैं, टाइटर। टाइटर इज द वॉल्यूम यूज, वो पूछ सकता है टाइटर की डेफिनेशन। द वॉल्यूम ऑफ एसिड, जो भी ब्यूरेट में, जो भी चीज ब्यूरेट में होती है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज व्हाटएवर इज इन द फ्लास्क, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड to neutralize the chemical alkali in the flask। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 34.7 if I'm not wrong। यहाँ पे क्या आएगा, 34.9. 0.9, right? Now we get what one again, explain why the student uses a white tile। देखो वो सारी वही क्वेश्चंस, अगर आपने पहले से अच्छी एक लॉजिक बनाई हुई, क्वेश्चन ठीक से पढ़ा हुआ है, आगे सारे क्वेश्चन रोलर कोस्टर है, यूं जाएंगे सारे, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे इंशाल्लाह। सो व्हाई आई नीड टू पुट द white tile, why there is a need to put white tile, डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर लाइबा, So we क्यों can रखी white tile? observe the color change. To observe the sharp color change, sharp, to observe the sharp end point is the good word, the sharp color change in the flask, और सिंपली आप लिख दो एंड पॉइंट। वो आपसे पूछ सकते हैं एंड पॉइंट का क्या मतलब, व्हाट इज मेंट बाय एंड पॉइंट। इट इज व्हेन ऑल द एसिड और एल्कली इज न्यूट्रलाइज्ड, दैट्स एंड पॉइंट। जैसे ही एक एक्सेस में ऐड करोगे तो फिर एक्सेस हो जाएगा। कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ 0.5 mole per decimeter of HCl needed to neutralize 25.A and B। तो देखो अब हम ऊपर से जो ऐड कर रहे थे वो हम एसिड ऐड कर रहे थे, एसिड का ये जो हमने टाइटर है ये एसिड का वॉल्यूम, तो ये एसिड, क्योंकि ब्यूरेट में हमने एसिड लिया हुआ था, तो व्हेन वी वर डूइंग एक्सपेरिमेंट विद ए एक्वस अमोनिया, नीचे एक्वस अमोनिया ए था और हम ऊपर हमारे पास एसिड था, तो हाउ मच एसिड वाज यूज्ड, व्हाट इज द मीन वॉल्यूम हियर। सो इन दोनों को ऐड करें, 15.2 प्लस 15.0 over 2, it should be 15.1, right? So that is the mean volume here। अच्छा कोई बच्चा जल्दी से मार्किंग स्कीम खोले, साथ हमारी रीडिंग्स, क्योंकि यहाँ पे ठीक होनी चाहिए, अगर रीडिंग्स पे मसला हुआ तो फिर आगे, वैसे तो आई थिंक ठीक ही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ साइड, क्योंकि फिर आगे सारे क्वेश्चन सीधे बेस करेंगे। 34.7, अब इसका मीन लेंगे ना, इनको भी डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। 34.7 प्लस 39, भाई 34.8 ही आएगा ना, क्यों ले रहा हूँ, बस ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है, यही आएगा ना, ठीक है। अच्छा अब इमेजिन, यहाँ पे हम थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि इससे आगे फिर हमारे लिए ये इजी होने वाला है। देखो यार आपके पास दिस वाज योर 25.0 ammonia sample A, and in the other experiment you have the same 25.0 ammonia, but this is sample B, right? This is sample A, this is sample B, and above in the burette we have the same HCl in both experiment। यहाँ पे भी उसी concentration और volume का HCl लिया हमने, और यहाँ पे भी उसी concentration और HCl का हमने, I mean HCl। So in both of these experiments we have the same HCl whose concentration is 0.5 mole per decimeter cube, right? Now in experiment A, how much HCl was used? In experiment A, 15.1 cm cube of acid was used to reach the end point, 15.1, but in experiment B 34.8 HCl। तो HCl ज्यादा किस में यूज हुआ, in which experiment, in which sample of ammonia more HCl was used, in ammonia B। इसका मतलब sample of ammonia B is more concentrated or less concentrated, in which sample of ammonia which is more concentrated, कौन सा sample ज्यादा concentrated, जिसमें ज्यादा HCl यूज हुआ। इसका मतलब sample B is almost twice
as concentrated as sample A. So sample B is more concentrated. ये हमने लॉजिक बना ली है, more concentrated. क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज, इसके एंड पॉइंट को रीच करने के लिए ऑलमोस्ट डबल HCl was used as compared to HCl used in experiment A. Okay, now the equation for the reaction, so ratio is 1:1. We can see that HCl is an acid, it will lose one hydrogen ion. So when it will lose hydrogen ion, it will become, and it's ammonia is a base, it will accept. जब एक्सेप्ट करेगी तो NH4 प्लस बन जाएगी, और जब ये लूज करेगा तो ये Cl नेगेटिव बन जाएगा. तो जब इनकी दोस्ती होगी तो यही फॉर्मूला बनेगा ना, लाइक NH4 प्लस और माइनस है तो you'll get ammonium chloride, right? Okay, now the important thing here is the ratio is 1:1. That's what I want to discuss. Use the mean volume of acid needed to neutralize 25 of A. अब हम A की बात करें in D to calculate the concentration of ammonia A. Give your answer to a. तो यहाँ पे हमने करना क्या, बेसिकली we know the volume, अमोनिया की बात हो रही है, अमोनिया इन A की बात हो रही है. इसका वॉल्यूम तो हमें पता चल गया, वॉल्यूम तो हमें पहले से पता था 25.0 हमने यूज किया हुआ था. वो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करें, तो व्हाट फार्मूला वी कैन यूज हियर? द ओनली फार्मूला दैट वी नीड टू नो इज concentration times volume. इसका मतलब ये है कि हमें अमोनिया के क्या चाहिए, मोल्स चाहिए. इफ वॉल्यूम हमारे पास पहले से है, दैट इज गिवन, वी वांट टू गेट द मोल्स ऑफ अमोनिया. अब मोल्स कहां से आएंगे? मोल्स आएंगे, वी फर्स्ट नीड टू गेट द मोल्स ऑफ HCl. तो हमें सबसे पहले HCl के मोल्स फाइंड करेंगे. HCl के मोल्स के लिए देखो, मोल्स के लिए आई नीड कॉन्सेंट्रेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.5 एंड आई नीड द वॉल्यूम जो मैंने अभी फाइंड किया. ये सैंपल ए की बात हो रही थी, यहाँ पे सैंपल ए का वॉल्यूम यूज करेंगे. सैंपल ए में कितना HCl यूज हुआ था? 15.1. आई एम श्योर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, बिकॉज yes. Okay, so now the moles of इसकी कॉन्सेंट्रेशन यार 0.5 है, वॉल्यूम 15.1 है, बट यहाँ पे भी हम प्रॉब्लम करते हैं. तो 15.1 सेंटीमीटर क्यूब है. We need to divide this with 1000 to get the volume in decimeter cube. Please do the maths, everyone. Do the maths. क्या होगा? 0.5 times 0.015. I'm sure कोई बच्चा साथ साथ डबल चेक कर रहा है हमारी वैल्यूज, just for safe side. So these are the moles of HCl. सबके पास यही आ रहे हैं. Yes. ये क्वेश्चन आप जितना मर्जी ये क्वेश्चन सुन लें, वीडियोस देख लें, ये आपको समझ ही नहीं आ सकता जब तक आप मेरे साथ इसको सॉल्व ना करें. इसलिए वर्कशीट मैंने आपको 1 साल पहले भेजी हुई है कि इसको आपने प्रिंट करवा के खुद से सॉल्व करना है, एंड देन आपने मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं. सो आई एम श्योर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं इसको. Okay, now we got the moles of HCl. Since the ratio is 1:1, aqueous ammonia का भी तो वही moles होंगे ना. मैं रेशियो ना लगाऊं तो बात बन जाएगी ना. I have the exact same moles of aqueous ammonia. Since the ratio is 1:1, how do I know? Because HCl का 1 mole होगा तो अमोनिया का भी 1 mole होगा. The ratio is 1:1. Now let's find the concentration of ammonia. Concentration is moles over volume. So concentration is 7.5 times 10⁻³ I mean the moles. And how much volume? 25 cm cube है, तो इसको भी हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, टू गेट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा 0.025. प्लीज गेट द कंसंट्रेशन एवरीवन. कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, इट्स 0.3. प्लीज डबल चेक जुमेर. 0.3. इज इट 0.3? एक बच्चा बस डबल चेक कर लेना साथ. It is. ओके गुड, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं. नाउ Yes, sir. Part F. Calculate the volume. This is the most critical question. देखो ATPA क्वेश्चन तो है, मुश्किल होगा आसान होगा. मैं कहता हूँ कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस आर गुड फॉर पीपल लाइक यू हु हैव वर्कड सो हार्ड फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स से तो मेरे साथ हैं आप लोग, और मोस्ट ऑफ यू उससे भी पहले से. सो अगर पेपर इजी क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तो थ्रेशोल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बड़ा मसला हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत मेहनत की. तो भाई एग्जामिनर को हमें टेस्ट करना चाहिए ना हमारा नॉलेज. तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए और हमें ये आने चाहिए. ये जो कल आपको डिटेल वर्कशीट मिली है जस्ट फॉर क्वेश्चन 2 और उससे पहले डे बिफोर यस्टरडे क्वेश्चन 3, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट. मैंने पहले दिन बताया था कि अगर आप ये वर्कशीट के आपको सारे क्वेश्चंस विद लॉजिक आते होंगे तो जिस तरह पेपर एमसीक्यू पेपर वाज एक्चुअली 90% जो हमने बताया था आपको वही आया था. इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ.
बट प्रिंटेड वर्कशीट आपने सॉल्व करनी है। नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। अब वो क्या कह रहा है गैस का, बताओ। मेजर आरटीपी डिसॉल्व इन 25 ऑफ ए। अच्छा, ये जो हमने मोल्स निकाले थे, ये बात सुनो, ये जो हमने मोल्स निकाले थे अमोनिया के, दीज वर द मोल्स। ये मोल्स कहाँ पे थे? ये 25 सैंपल में ही थे ना, 25 ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का तो हमने यूज ही 25 किया। सो नाउ आई वांट टू गेट द वॉल्यूम बॉयज एंड गर्ल्स। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? गैसेस के लिए क्या फॉर्मूला वॉल्यूम का? डेसीमीटर क्यूब की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ओवर 24। 24. यस, सो इसका मतलब इफ आई हैव द मोल्स, I can simply multiply it with 24 to get the volume in decimeter cube. So what are the moles? I have no 7.5 times 10 raised per negative 3 times 24 give me the volume. What is the volume? And please double check with the marking scheme as well. 0.18. So that is the volume in decimeter cube of ammonia gas which was dissolved in 25 cm cube of water to make a solution of 25.0 cm cube of ammonia gas in sample A. Ammonia solution, तो अमोनिया गैस हमने डिसॉल्व की और वो जो सैंपल ए बना वो एक्वस अमोनिया का सोल्यूशन बन गया। मेक सेंस एवरीवन? अब हमने उसके पूरा उसकी सर्जरी कर दी है कि हाउ द सैंपल ए, कितना सैंपल ए था, उसमें कितने वॉल्यूम थे, कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी और उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस वाज इनिशियली। आगे तो जैसे जैसे हम गेम कोई खेलते हैं ना, गेम, तो मैं खेलता था गेम जब आपकी एज में था, एक स्नेक वाली गेम आती थी, जैसे जैसे हम स्टेप आगे जाते हैं तो वो बड़ा लेवल हार्ड होता जाता था। तो इस क्वेश्चन में सेम पैटर्न है भाई, किसी गेमर ने बनाया हुआ ये क्वेश्चन, ये तो बहुत बड़ा स्कैमर और गेमर है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इट्स रियली इजी, जस्ट सी द वैल्यूज, plug in the values in the table, very easy. The moment आप जैसे जैसे आगे जाएंगे लेवल उसका हार्ड होता जाएगा। सो आई एम श्योर हम उसको फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, इक्विप्ड हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तानी पीपल against the enemy and you expert people, Dr. Aksa. Abhi main sun raha tha Dr. Aksa that if anyone goes on the any international channel or Indian channel for the expert opinion, they give like $1,000 for like 15 or 20-minute talk. So I think you and Hisham and most of our class fellows like Iman, not Iman really, Umaima, you people have very good potential to be a, you know, war expert. So wahan pe bhi aap apni CV भेज सकते. Okay, use your answer to D and F. D and F पिछले आंसर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस इन बी। अब बी की बात कर रहा है, ठीक है, पहले ए की बात कर रहा था। अब हम डी और एफ में फाइंड क्या किया भाई हमने? डी में क्या फाइंड किया हमने? डी में हमने वॉल्यूम ऑफ बी फाइंड किया था, यस किया था। 34.8 cm cube of B was used। तो मैं यहाँ पे बी का वॉल्यूम लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ बी, नो वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये तो एसिड का वॉल्यूम है ना, कितना था फिर भूल गया, 34.8। तो ये HCl का वॉल्यूम है जो यूज हुआ है 34.8। और फिर वो कह रहा है कि यूज योर आंसर टू एफ। एफ के क्या आंसर है? एफ में हमने फाइंड किए हैं वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। ओके, तो मुझे ये बताएं, सब लोग जरा गौर से यहाँ पे बात सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, वैसे तो सारे दिमाग से होने वाली है, सिर्फ ज्यादा इसमें ब्रेन का इनर पार्ट यूज करना पड़ेगा। सो इमेजिन आपके पास HCl है, आप उसको सैंपल ए से भी ट्रीट कर रहे हो और उसी HCl को सैंपल बी से भी ट्रीट कर रहे हो। सैंपल ए में 15.1 वाज रिक्वायर्ड, सैंपल बी में 34.7 वाज रिक्वायर्ड, 34.8 वाज रिक्वायर्ड, राइट? ठीक है। Now these are two different samples of ammonia. Makes sense कि आपको ये बात क्लिक करनी चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि आपने अगर 15.1 HCl यूज होता है और उस 15.1 HCl से हमने अमोनिया का जो वॉल्यूम निकाला है वो है 0.18, 15.1 से। वो कहता है कि आप बी में भी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस बताएंगे। अगर बी का सैंपल हमने डिजाइन किया है जिसमें 34.8 HCl यूज हुआ है, तो आप बताएं अगर इतना एसिड यूज हुआ है तो वो जो अमोनिया थी उसमें कितनी अमोनिया गैस हमने डिसॉल्व की। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो इसको हमने करना है रेशो मेथड से।
पहले इनमें सिंपल रेशियो निकालते हैं। देखो कि HCl की कितनी रेशियो है, HCl की रेशियो से फिर हम अमोनिया की, अच्छा ये जो यहाँ पे हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं कि अगर इसमें 1 मोल ऑफ HCl यूज हो रहा था तो बी वाले में उसके रेशियो में बी में कितना डबल या कितने टाइम्स ज्यादा यूज हो रहा था। सो 34.8 ओवर 15 क्या आएगी रेशियो, जरा जल्दी से बताएं मुझे। 34.8 डिवाइड बाय 15.1 इट्स 2.3। इसका मतलब ये है कि सुने सब लोग, this much HCl was used in sample A for the same volume of 25 cm cube of sample A, and we got the same volume of B, but for the same volume of B this much HCl was used. तो HCl जो यूज हुए that is 2.3 times more than the HCl used in sample A. ये बात समझ आई आपको? Yes or no? Yes. So 2.3 times more HCl was used. इसका मतलब ये कि अगर सैंपल ए को बनाने के लिए इतना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड था, इतना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, तो सैंपल बी को बनाने के लिए इस वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम था? 0.18 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस was required to make sample A. But since the ratio is 1:2.3 now, sample B को बनाने के लिए we need 2.3 times ammonia gas what was used in sample A. तो what should be the answer? इसको जरा दोबारा खुद से सॉल्व करें। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए कि मैंने कैसे ये लॉजिक डिजाइन की है, आपने कैसे करनी है। इट्स इज रियली सिंपल, जस्ट सिंपल रेशियो लेनी है आपको। सो इट इज 0.414। प्लीज डबल चेक एनीवन, अगर तो मार्किंग स्कीम से चेक कर ले क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीज है। आई एम श्योर ये ठीक होगा, बट 0.42. या फेयर इनफ 42 और फिर 414। अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो 42 हो जाएगा। ये बात समझ आई आप? ओके अच्छा, ये तो आप कर लेंगे ना, ये तो मैंने बता दिया था आपको। क्या है बाय द वे, व्हाट इज H? The student rinse the burette 0.5 HCl immediately before it is filled. So कहता है कि उसने उसको रिंस किया है HCl के साथ immediately before it is filled. Explain why it should not be rinsed with the distilled water. So distilled water, the drops of the water may, the drops of distilled water may stuck with the walls, inner walls of burette which can dilute. अच्छा, वो पानी उसके अंदर रह जाएगा, तो फिर जब हम उसके अंदर HCl ऐड करेंगे तो HCl वो तो पहले से वाटर मिलेगा, तो HCl क्या हो जाएगा? पहले से ज्यादा डाइल्यूट। तो जब डाइल्यूट होगा तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन के रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे? खराब। पहला अगर ठीक था तो दूसरा तो बड़ा ज्यादा HCl चाहिए होगा दूसरे में, क्योंकि डाइल्यूट हो गया। सो विच कैन डाइल्यूट द HCl। ठीक है, HCl यूज कर रहे हैं, ठीक है। Why universal indicator is not suitable? Why universal indicator is not suitable for titrations? Because universal indicator have a range of colors. उसका तो हर pH पे कलर है, तो how do we know कि ये न्यूट्रल हो गया या नहीं, एंड पॉइंट आ गया या नहीं। ये जो मिथाइल ऑरेंज है या थाइमोफ्थालीन है, फिनोफ्थालीन, ये इनके कलर शार्प कलर चेंज होते हैं एट एग्जैक्ट 7, राइट। जैसे एक एक्सेस में आप ऐड करोगे कलर चेंज हो जाएगा, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज अ रेंज ऑफ कलर्स, so it gives range of colors, so it's not it's very difficult to distinguish, to find the endpoint. It gives range of color, so difficult to find the endpoint. Make sense, everyone? Yes. So Yes. this was an important 14, almost half of your paper. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। एज यू गो डीपर इन दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चंस बिकम मोर चैलेंजिंग, मोर, बट वो चैलेंजिंग होते नहीं है, वो कनेक्टेड होते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ो एंड जस्ट कनेक्ट एवरी पार्ट विद द प्रीवियस पार्ट। देखो यहाँ पे जो ई पार्ट था, अगर आपने ये ठीक से कर लिया आगे, तो वो फिर वो एक
राइट है जो वो चलती जाएगी। फिर उसके बाद एफ के बाद ये वाला पार्ट जी वाज लिटिल चैलेंजिंग टू हाउ टू गेट द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, एंड वंस यू गेट द रेशियो एंड देन हाउ टू गेट द वॉल्यूम, राइट, you multiplied with, उसने वैसे रेफरेंस दिया हुआ है, use your answer to do it D and F. Okay, all right, I'm sure you all are super excited and not tired because it's early morning here and we have to at least complete this question. Question number 2. White vinegar is a colorless solution of ethanoic acid. So you have white vinegar here. अच्छा, विनेगर वैसे एसिड ही होता है, ये आपको क्वेश्चन भी आया था, मैंने बताया था एक दिन पहले, पता नहीं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सका, शायद रिकॉर्डेड था वो। विनेगर का क्वेश्चन आया था और मेरा ख्याल बहुत सारे बच्चों ने उसमें स्ट्रगल किया। विनेगर कैसे बनता है? व्हेन यू हैव एथेनॉल C2H5, अब तो आ गया ना, एथेनॉल को एयर में रख दो बस, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन है तो you'll get vinegar, इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी एथेनॉल को KMnO4 के साथ ट्रीट कराओ with acidified condition, so you'll get ethanoic acid, which is a complete oxidation. But anyhow, a student titrate 0.5 mole per decimeter cube of sodium hydroxide with 2 samples of vinegar. ये मिलकर बिल्कुल उससे मिलता है, उससे रिवर्स हो गया। Initially you were given with, ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए छोड़ कर लेंगे आप सब लोग, 100% वैसे ही होगा। Initially you were given with 2 samples of ammonia and 1 fixed acid. यहाँ पे you are given with fixed NaOH, उसकी concentration given है, and you are treating the NaOH, जिसकी concentration is 0.4 mole per decimeter cube. You are treating the same NaCl with 2 different samples of vinegar, sample A and sample B, and rest is the same story जिस तरह पहले किया था। कर लेंगे आप सब लोग? Yes, you will fill the burette reading here, the 4th burette reading here, and then the mean volume. Why it is repeated? देखो different question आ गया ना, why the titration has to be repeated? क्यों repeat करते हैं? To get the more reliable result, to check the reliability, to get the more accurate result, to get the more accurate results. Yes, okay then, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने किया था, concentration का पीछे मैंने आपको करवाया है। So once you have the volume, you can just go with the flow. ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं आपको कराऊंगा। मैं इसके ये क्वेश्चन करा देता हूँ, कैलकुलेशन तक आप लोग करेंगे इसको। वहां पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे मैथ फाइंड कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, आई मीन सेम लॉजिक। मैथ्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? N is M over MR, राइट? इफ यू गॉट द मैथ्स, यू नीड टू गेट द मोल्स एंड ऑफ कोर्स द MR। MR आप कैलकुलेट कर लोगे एथेनॉइक एसिड का, और मोल्स आपके पास आएंगे सिंपल रेशियो से, और मैथ्स आप फाइंड कर लेंगे। सो जस्ट व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क इज रिंस्ड। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस तंग करते हैं समटाइम, along with the original calculation related questions. So why it should be rinsed? मैंने अभी स्टार्ट में बताया, where is it, there's a need to rinse for 2 marks. Anyone in the class? Why there's a need to rinse the remove the excess sodium hydroxide between the titrations. rinse with distilled water. अच्छा, ये पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, so that it cannot dilute. अच्छा, इसमें तो डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर रहे हैं ना, and not with, हाँ, तो अगर आपके पास सोडियम, अगर आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिंस करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट ओवर होगा, इट कैन एक्चुअली हमारे सैंपल को खराब करेगा। तो आपने उसको रिंस करना विद वाटर सो दैट इट रिमूव एनी लेफ्ट ओवर ऑफ द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, एनी केमिकल, टू रिमूव द केमिकल्स लेफ्ट ओवर ऑफ द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। सम विनेगर आर ब्राउन रादर देन कलरलेस, कुछ लोग ब्राउन होते हैं। सजेस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्या इससे रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सजेस्ट जब हम इसके 5-7 क्वेश्चंस कर लेंगे ना टाइट्रेशन रिलेटेड, तो आपकी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आप कर लेंगे जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसलिए वी डिजाइन दिस डिटेल वर्कशीट एंड यू विल गेट इंशाल्लाह अ डिफरेंट वन एज वेल, जिसमें यू गेट एवरीथिंग जो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए रिगार्डिंग टाइट्रेशन एंड रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने प्रीवियस क्लास में किए थे। हम सब कुछ कर चुके हैं, बट दोज पीपल जिन्होंने एक्चुअल में प्रिंट लिया है और उसको प्रिंटेड फॉर्म में खुद सॉल्व किया है। सम विनेगर आर ब्राउन रादर देन कलरलेस. This is why the titration method is not suitable to find the concentration of ethanoic acid is in the brown vinegar. देखो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन में तो हमारे पास कलरलेस चीजें होती हैं जिसमें वी ऐड एन इंडिकेटर एंड वी नो द एंड पॉइंट। अगर वो पहले से कलरफुल है तो हमें कैसे एंड पॉइंट का पता चलेगा भाई? देखो हम इंडिकेटर यहाँ पे वी हैव कॉनिकल फ्लास्क हियर in which we have any alkali which is colorless, which is supposed to be colorless, और यहाँ पे कोई कलरफुल चीज भी हो सकती है, KMnO4 नॉर्मली हम इसमें लेते हैं, बट जो भी चीज हमने नीचे ली हुई दैट शुड बी कलरलेस टू गेट द कलर। यहाँ पे तो वो कह रहा है कि ब्राउन,
तो we could not find the color change. We could not find the अगर हम titration करेंगे तो we won't be able to find the color change, the end point. Make sense, everyone? Yes. Yep. Okay. I'm sure आप थके नहीं हैं, सब लोग जाग रहे हैं. Umayma ने इधर आके अपना फिर से एक्सपर्ट ओपिनियन देना शुरू कर दिया, but she's not in the class. Umayma, are you with us? All right, question number 3, everyone. चलें, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप सबको please read the full thing of the question, underline every important information, and then we will start the solution. 2 minutes from now. Yes, पढ़ लिया आपने? 10 seconds. All right, HCl is neutralized when added to aqueous potassium hydroxide. I just mentioned that neutralization reaction is always exothermic. Now P is potassium hydroxide. This is your P and this is your Q. For Q, we are given with the concentration. ये जो 2.24 mole per decimeter cube होती, that is concentration. A student determines the concentration of P. So P की concentration is unknown. So to get the concentration, we need the moles and we need the volume. That's how you get the concentration. The student does 6 experiments. उसको कोई काम नहीं था, बस लैब में बैठा हुआ था, अच्छा बच्चा था पढ़ने वाला, और वो experiment कर रहा था. So he did 6 experiments. The student, step 1, uses a volumetric pipette to add 25.0 P into the plastic cup. तो उसने एक प्लास्टिक का कप लिया, उसमें उसने ऐड कर दिया 25.0 cm³ of P, which is potassium hydroxide, KOH. That is P. Using a measuring cylinder to add 20 cm³ of distilled water to the cup. अब इसमें उसने पानी भी ऐड कर दिया, वाटर का कलर पानी ऐड कर दिया इसमें. So initially it was 25.0, फिर उसने 20 इसमें ऐड किया वाटर, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 45, right, of inside the plastic cup. Stir the mixture in the cup with a thermometer. So he placed a thermometer और make sure कि thermometer का जो bulb है that should be immersed in the solution. तो उसने उसको stir कर रहा है to mix the solution to get a diluted solution, क्योंकि पानी ऐड किया हुआ. And record the temperature nearest to 0.5. तो उस पे टेम्परेचर देख रहा है कि उस पे क्या टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर उसने नोट कर लिया होगा ऑफ कोर्स. अब उसने क्या किया, यूज अ ब्यूरेट टू ऐड 5 cm³ ऑफ Q. अब Q है क्या, Q इज HCl, तो इसमें उसने थोड़ा सा HCl ऐड कर दिया. कितना ऐड किया, 5 cm, राइट. सो इसमें 5 cm³ ऑफ HCl ऐड किया. टोटल वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ 45, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नाउ 50. ठीक है. अब जैसे HCl ऐड किया, KOH में हमने HCl ऐड किया, तो वहां पे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन वर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होगा. तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मुझे ये बताएं कि थर्मामीटर की रीडिंग विल गो अबव और नीचे जाएगी. ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रीडिंग ऊपर जाएगी, तो आपने रीडिंग नोट कर लेनी. रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच्ड. एम्प्टीज द प्लास्टिक कप एंड रिंस इट विद वाटर. एम्प्टी किया, रिंस किया. रिपीट स्टेप. कितना आसान काम है यार. कप लिया, उसमें 45 वोल्ट डाला, 25 वोल्ट डाला, 20 पानी डाला, इनिशियल टेम्परेचर नोट किया, फिर उसमें HCl डाला 5 और उसका टेम्परेचर नोट कर लिया, हाईएस्ट टेम्परेचर. यस मैम ईमान. Wouldn't the temperature decrease since heat is being lost? Heat is being lost to the surroundings, Environment. to the environment, and your thermometer is part of the environment. But it's in the acid. But it is still part of the environment, even if it's in the acid. I mean, even if inside the acid, imagine you are sitting in the kitchen, you're standing in the kitchen, an exothermic reaction is happening. So what do you think?
the temperature of the kitchen would go up or will it decrease? Kitchen में जाके गर्मी लगती है, सर्दी लगती है? Iman? Well, the kitchen is the surrounding, so it would be warmer. Okay, so imagine आपने thermometer. What is your what the experiment in the kitchen? That is the gas. उसमें से जो आ रही है. तो आप गैस के अंदर thermometer रख के देखना कि क्या हो रहा है. वो जो temperature नीचे जाता है वो particles का होता है. Particles loses energy and the particles have low energy. As a result of exothermic reaction. But the reading on the thermometer, it always go up. Endothermic में reverse हो जाएगा. All right. So repeat the experiment 1 to 6. So the total volume always be 50. यहाँ पे मुफ्त giveaway marks मिलने वाले आपको. Experiment 1 में the volume of P used was 25. Water का हमने add किया 20. Q उसमें add किया 5 cm cube. Initial temperature was 24. Highest temperature reached 26. So the temperature raise हुआ. The temperature rise in this experiment 1 is 2 degrees. 2.0. Now, in the second experiment, 25 of P is used. 10 of Q is used. How much water should I put to make overall 50? कितना water add करूँ यहाँ पे? 15, I guess. Overall 50 होना चाहिए ना? ऊपर experiment में बताया हुआ है. It should be 50 always, right? So इन तीनों को add करके 50 आंसर आना चाहिए. देखो ऊपर को 50 है तो यहाँ पे 15.0 लिख दूँ. 15 लिखूंगा कुछ नहीं मिलेगा. 15.0 लिखना है मैंने. लेकिन नीचे उसने वैसे लिखा हुआ है. इसको हम मेजर किससे कर रहे हैं? मेजरिंग सिलेंडर से कर रहे हैं. वेट अ मिनट. हाँ, मेजरिंग सिलेंडर से कर रहे हैं. तो मेजरिंग सिलेंडर को हम पॉइंट्स में नहीं लिख सकते. We are measuring it with measuring cylinder, so it should be 50. Okay, now यहाँ पे 15.0 लिखेंगे तो मसला होगा. Here there is the same fourth experiment. उसमें what volume of Q should I add to make it overall 50? So 25 plus 7 is 32 and 18. यहाँ पे 18 नहीं लिखना, यहाँ पे 18.0 लिखना है. गिव अवे मार्क्स हैं लेकिन थोड़ी सी चीजों का ख्याल रखना बिकॉज इसको हम ब्यूरेट से मेजर कर रहे हैं. ब्यूरेट इज सेंसिटिव अप टू 0.1 डेसिमल प्लेस. एंड यहाँ पे वी नीड टू गेट द टेम्परेचर डिफरेंस. कितना आएगा टेम्परेचर डिफरेंस? लाइक 33 minus 26.5. It should be 6.5 if I'm not wrong. Yes, yeah. So 6.5. इसका मतलब in last 3 experiment the temperature changes the same. That means जो भी था वो neutral हो गया. So you will get 3 marks, but with every mark precision matters a lot. Here you don't need to put decimal place. Decimal is required, and decimal is required with 1.1 accuracy. Now there, everyone. Parts of the thermometer used in experiment 5 and the figure 2.1. So this very experiment is experiment 5. Let's see what experiment 5 is. In experiment 5, we are using 25 volume of P, 5 of water, and 20 of Q. Initial temperature is 26. Final was 32.5, and the difference was 6.5. That's his temperature 5. Experiment 5. Liquid level inside the thermometer are missing. Okay. Complete figure 2.1. Complete सब लोग. Read the question everyone and try to complete this 2.1. कैसे लिखूंगा इसको मैं? शाबाश. So क्या question? Parts of thermometer experiment 5 is shown. Level inside the water are missing. So this is a thermometer. You can see that experiment 5 का thermometer ये है initial वाला, and this is the highest temperature final वाला. Now complete figure 2.1 drawing the liquid level inside. Initial temperature of P is experiment 5 and final temperature. So what was initial temperature? Initial temperature was 26 in experiment 5. ऐसा ही है. So let's fill 26 तक इसको fill कर देंगे. मार्क लगा देंगे यहाँ पे और नीचे तक इसको हम right. So this is your initial temperature. And what is the final temperature reached in experiment 5? 32.5. So let's put 32.5 here. 32.5 should be right in the middle of 32 and 33. तो यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हैं. ये काम कर देंगे. Authentic काम हो जाता है. I think so.
उसने क्वेश्चन करते हैं इसमें, बस पूरा कर दो, क्योंकि मरकरी है ना, तो मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा. दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल टेम्परेचर. सो बाय ड्रॉइंग द लिक्विड लेवल, ठीक है, तो इसका मतलब हमने सही ड्रॉ किया. दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द लेवल ऑफ लिक्विड. नाउ देयर, ड्रॉ अ ग्राफ for the temperature raised against the volume of Q on the grid in 2.2. You should. What are the things that we need to consider while plotting the graph? You should plot the point, not 0.00 से start होने चाहिए. There is no temperature raise when no Q is added. Initial temperature पे कोई raise नहीं होगा ना, zero है. Plot the temperature raise and the volume of Q, table 2.1. Draw a straight line of best fit जिसमें ज्यादा लोग आ रहे हैं. For the first 4 points, इन चीजों का ख्याल रखना है. Draw a straight line best fit for the last 3 points. तो 2 lines हमने ड्रॉ करनी है, पहले 4 की और लास्ट 3 की. Extend the line so that they can intersect. Okay. तो अगर कोई बच्चा, हमें बार बार वापस जाना पड़ेगा. पहले एक्सपेरिमेंट का इनिशियल टेम्परेचर 24, फाइनल टेम्परेचर 26 and raise is 2. टेम्परेचर रेज, हमने सिर्फ टेम्परेचर रेज देखा. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 डिग्री पहले एक्सपेरिमेंट का है. या मुझे बता देना आप वॉल्यूम ऑफ क्यू ऐड कर रहे हो. सो यहाँ पे हम क्यू का वॉल्यूम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम चेंज लिख लेते हैं. सो हाउ मच क्यू इज एडेड? क्यू 5 ऐड करेंगे तो 2 डिग्री, 10 ऐड करेंगे 4, 5, 10, 15, 2, 4, 6. सो 5, 10, 15, and the volume changes, I mean temperature changes 2, 4 and 6 degrees. And in the next 3 experiment, 18, 20, 25, 6.5, 6.5 and 6.5. 18, 20 and 25. It was 6.5 in all 3. Again, these are the values that we have. It's very easy now to plot the graph. अच्छा, initial volume of Q that is used was 5. देखो ये 5 है. 5 पे कितना चेंज आ रहा है? 2 डिग्री. So 5 पे चेंज आ रहा है 2 डिग्री. अच्छी चीज ये कि आपको पहले से हर चीज गिवन है, like the axes are already labeled. So 5 पे ये चेंज आ रहा है, ठीक है, इसको मैं यूं कर लेता हूं 2 डिग्रीज एग्जैक्ट. अच्छा, 10 पे क्या चेंज आ रहा है? 4 डिग्रीज. तो 10 पे 4 degrees, 10 is 4 degrees, so it's right there. 10 पे 4 degrees आ रहा है and 15 पे 6 degree आ रहा है. So 15 पे how much is the temperature change? 6 degrees, right? And then 18, अब 18 ढूंढना है. What is the minimum reading here? कैसे find करते हैं? 20 में से 5 है ना, 5 डिवाइड बाय 0.2 का मेरे ख्याल एक है. ऐसे फाइंड करते हैं ना. 20, अगर मैंने एक मिनिमम बॉक्स लेना है तो 20 माइनस 15 डिवाइड बाय 10, तो होगा 5 over 10. तो मेरा ख्याल 0.2 का एक स्मॉल बॉक्स है, 0.5 का है. अब हमने ढूंढना है लाइक 18. तो 18 कहाँ आएगा? 18 आएगा 15, 16, 17 और 18. दिस इज 18. 18 पे कितना चेंज है? 18 is 6.5. अब यहाँ पे हमने ढूंढना है कि मिनिमम चेंज क्या है. The 6.5 should be right there, right in the middle of 6 and 7. So this is 18. Yes. Yep. 6.5 है 18 पे and then 20 पे. Be very careful while you plot, क्योंकि वो चेक करेगा आपका ग्राफ. और 25 पे भी 6.5. Okay. Draw the line of best fit from the first 4 points. So in first 4 की straight line तो नहीं बन रही. हाँ नहीं आ रही, बट बेस्ट फिट तो यही बन रही है ना. और ड्रॉ द लाइन
एक मिनट, हमने ग्राफ 6.5 बनाना है ना हमें, तो आई थिंक टू हाँ ठीक बनाया नहीं था। अच्छा, फिर ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर द लास्ट 3 पॉइंट्स, एक्सटेंड सो दैट दे कैन इंटरसेक्ट। तो हमने एक्सटेंड कर दिया और इसको इंटरसेक्ट भी कर दिया। आई एम श्योर ये लाइन आपको नजर आ रही है, right? This is the line of best fit for the last 3 points. So you will get how many marks? 3 marks. The points where the two line intersect indicate the volume of Q that exactly neutralize. तो कहाँ पे intersect कर रहे हैं? At this point. At this point, this is the volume of Q that exactly neutralizes the P. यहाँ पे exact neutral हो गया है. At this point, what is the volume? That is 16 Q. ये देखो 15 है, 16, ये 17 है. Actually 17.0 centimeter cube of Q was exactly required to neutralize the P. तो जहां पे intersect करेगा हमने उसको check कर लेना है along x-axis. Determine the volume of Q, तो हमने determine कर लिया, that is 17, और हमने उसको grid पे show भी कर दिया. Okay, so we'll get one more. Q2 is 2.24 mole per decimeter cube of HCl. तो Q की उसने बेटा हमें concentration दी हुई है HCl की. HCl की concentration is already given, that is 2.24 mole per decimeter cube. Use your answer to D to calculate the concentration. Now let's find the volume of Q, I mean moles. तो Q के moles हम कैसे निकालेंगे? N is C times V. Concentration is already given 2.24. कितना volume use हुआ उसका? Yeah. So the volume used was 17, लेकिन ये किस में centimeter cube में, divided with the 1000 to get in decimeter cube and to get the answer. तो क्या moles आएंगे हमारे पास? Q is HCl, then ये हमें पता होना चाहिए. So it was 2.24 times 0.017. So कितना आएगा? The moles of HCl, not 0.038, right? These are the moles of HCl. अगर HCl के इतने moles हैं तो KOH के कितने होंगे? Ratio is 1:1. That means the moles of KOH are exactly the same, 0.038. Now we know the volume of KOH. हम किस experiment की बात कर रहे हैं? Calculate the concentration of potassium hydroxide in P. So अच्छा, P का neutralize 25.0. तो P का हमें volume given है, that is 25. ऊपर question में given है, right? So these are the moles and the volume given is 25.0. We can get the concentration, which is concentration is no moles over volume. Moles are not 0.038 over volume is 0.025, because this was in centimeter cube, so we need to divide it with 1000. Please do the maths, everyone. 0.038 divided by 0.025. Please double check. 1.52. इसको double check कर ले कोई बच्चा साथ साथ, because calculation part यहीं तक था. Is it correct? Yeah. Okay, now let's talk about the theory related questions. In the same question, a measuring cylinder is used to measure the volume of water. We use measuring cylinders. So just why volume of water are not given to 1 decimal. तो वही जो हमने पहले आपको बताया था कि measuring cylinder को की values को 1 decimal तक हम नहीं लिख सकते, because it is not sensitive up to 0.1. Measuring cylinder cannot measure the values up to 0.1 decimal places. (0.1). State and then explain why the plastic cup rather than a metal cup. So अगर हम metal cup use करते हैं उसमें तो सारा metal, हमारा metal तो conductor होता है, तो हमारा heat loss हो जाता है, so we won't be able to measure the exact heat change had we use metal cup. Now since we have used plastic cup, the plastic cup is insulator. It does not, it minimize the heat loss, so we can actually measure the exact heat change. Plastic cup is insulator, so it minimizes the heat loss
So we can, therefore we can measure the heat change more accurately. Measure the change of heat more accurately with plastic cup, like rather than metal, which is conductor. Which is जो heat loss करेगी. State why the mixer should be stirred. तो ये मैंने पहले बताया why there is a need to stir the mixer. To mix the contents of the flask thoroughly to get the better results, to get the accurate heat change. Make sense, everyone? So I'm just leaving one. This is almost a similar kind of question. इसको आप लोग try करें. And then there's the last question which is a bit different, लेकिन ये पहले से मैच कर रहा है. तो अगर आप इसके 3-4 questions कर लेते हैं ना, question 2s, you would see कि ये question repeat हो रहे हैं, right? So I'm sure आपको इस question की जो technicality है उसकी समझ आई है, because these questions are actually very important, especially question 2. सबसे high scoring question है, सबसे lengthy question है, और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा struggle करते हैं this question 2. पहला part easy होता है, जैसे मोल start हो जाता है, graph start होता है, या आगे उससे relevant theory के question start होते हैं, तो वहां पे हमारी थोड़ी सी ब्रेक लगने के चांसेस होते हैं. इंशाल्लाह आपके नहीं होंगे. इसको करें. आई विल शेयर अनदर वर्कशीट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. ऑलराइट, सी यू इंशाल्लाह at 9:15 with question 4s. Yes, Siman. In question 5, one of the parts seems incomplete. Part E part. The equation for the reaction is carbonate is. No, I think yes. Maybe the statement is incomplete. I will double check this. By the way, you simply need to get the concentration of sodium carbonate here. You got the mole from the previous part, whatever the number was. इसको करें, अगर नहीं होगा तो discuss it with you. So शाम में इंशाल्लाह 9:15 we are doing question. एक तो question 2s भी करेंगे हम उसमें, क्योंकि बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, अर्ली मॉर्निंग क्लास ही कम बच्चों ने ज्वाइन किया. And then we will do question 4 tonight इंशाल्लाह. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz, sir.